Hello, Namaste, welcome to my channel Man of Food. My name is त्रिलोचन। आज मैं आपको कोई स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट के वीडियोस नहीं बताने वाला हूँ। इस बार मैं डायरेक्टली उनके ओनर्स, रेस्टोरेंट्स के ओनर्स, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे, स्ट्रीट फूड ओनर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, उनकी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। कैसे इस लॉकडाउन और पेंडेमिक की वजह से उन पर कितना इफेक्ट हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो उनके ऊपर आए हुए, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनका कहीं ग्रोथ नहीं है। तो ये टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है, तो मैं मेरे चैनल के थ्रू उनकी स्टोरी आप सब तक क्या पहुंचाना चाहता हूँ। तो जितना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है हर एक को कहीं ना कहीं तकलीफ है इस कोरोना वायरस के वजह से, इस लॉकडाउन के से कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेंटली भी तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आप देखा है तो टोटल मुंबई शहर में ही 1051 होटल्स है और 87,000 रेस्टोरेंट्स है। तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कितने लोग काम करते हैं। तो लॉकडाउन के ऐसे बिजनेस तो पूरा ठप हो चुका है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ मिले, यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो के थ्रू से। तो मैंने जब पर्सनली जाके उन लोगों से बात किया, रेस्टोरेंट के ओनर से, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में और स्ट्रीट वेंडर्स से, तो उनकी स्टोरी सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और आगे तो आज उन पे जो बीत रही है वो डायरेक्टली आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ देखिए ये। I'm Aditya. I'm the owner of China Ka Khana restaurant in Juhu, and right now in this pandemic we are going through a very bad phase for all the restaurants. So here I am to tell my story. Hello everyone, I'm Gavin Russell Gonzalez. I'm head chef over here at Hijack. नमस्कार, मेरा नाम गोपी। Hi, I'm Aditya. I'm the owner of China Ka Khana restaurant in Juhu, and right now in this pandemic we are going through a very bad phase for all the restaurants. So here I am to tell my story through the Man of Food. And so basically the whole reason why I started restaurant was to generate employments. So earlier I was working with a staff of around 15 people. Right now I'm left with only 4 of them, as I can just manage and feed that much. So the whole point where I started the restaurant has gone for a toss. Other than that, now the government has given us the permission to do online deliveries, but we need to understand this, that while doing online deliveries, the restaurant is not making money, the staff won't be getting paid, the overheads won't be covered. The only people who are making money out of it is all the big brands like Zomato and Swiggy, because they're charging us 30% on the order amount. So that comes up to, if for example, if I'm selling a fried rice for $100, 30% is going to Swiggy or Zomato or any other platform which we have tied up on. So we are left with 70 rupees. Of that 70 rupees, we have to give discounts to the customers. So that leaves us with barely anything. So not even the cost is covered. So this whole thing is, it sounds good that the restaurant is doing fine, but it's probably not working that well for us. So, last lockdown we had pretty much suffered as well. This lockdown is getting worse because we are trying to still cover the losses from the last lockdown, and now again we are having losses in this pandemic, again this lockdown, second lockdown. Above that, we aren't allowed to do our own delivery. Like, our guy is not allowed to deliver the food. Even if I've got my entire staff tested of the RT-PCR test, which is valid for 15 days, still the cops tell us that we are not supposed to deliver our own food. We have to only deliver through Swiggy and Zomato. I think that's like a major flaw for us. And even if the restaurant industry is on for online delivery or whatever, we are still making heavy losses. We are not making any money. In fact, we are not even reaching break even. So the second problem we are facing is that our menu pricing is the same before lockdown, after lockdown, during lockdown. We can't really change the menu pricing, as the customers will get affected. But at the same time, you have to understand is that the raw material prices have gone high, and the menu prices are still the same. So it becomes very difficult for us to function, with the same kind of margin.
especially with the whole, this, and now there's also a transport issue that the raw material is not reaching us. So right now the only way of getting the raw material is through Zomato. Zomato have started their own raw material. The pricing is pretty decent. I'm not saying they're earning any money on it, but again I feel the corporate is it's like they are dominating the market. We have no other options or any other way to function without them. So we are stuck in a very bad bubble that can burst anytime. And speaking of which, I have already made a lot of bad debts. One of my outlet is already shut. This is my first outlet. My second outlet, which I opened, is shut in this pandemic, this lockdown especially. We tried surviving the last one, but this one we couldn't. So sadly, I have to close the other outlet, and sadly, I have to let other employees go. So yeah, it's been a tough phase. And the last you want to say something like a small message for the people who are watching this? I would say please support us. I understand even you guys are going through a bad phase. Money problem is everyone's having money problem, but just support all the small local businesses in any way you can. Just order food from them or something or other, in your own way, to at least help us sustain our staff. That's the whole point of it, because they are very underprivileged. They come from somewhere, a far part state where there are not really a lot of facilities. They come here to make a living, and right now they are the ones who are, suffering the most. I think that's what I have to say through this. So I would like to give a shout out to my restaurant China Ka Khana. Please order from Swiggy and Zomato and support us, help us sustain this lockdown as well. Thank you. Hello everyone, I'm Gavin Russell Gonsalves. I'm head chef over here at Hijack Restaurant, and he is my co-worker, my bar manager. Hi everyone, I'm Alvin Philin Gonsalves, working as a mixologist, come beverage manager over here. So today we'll be taking you all you guys with the pandemic what we are facing since last year. हम लोग पहले मैं सहारा से अपना ट्रेनिंग किया, फिर एक अच्छा रूटीन सेट हो गया था मेरा, मैं मशहद में जॉब करने लगा था, मशहद इन ताज सैनिटूस, एंड हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे. द बिजनेस वाज डूइंग गुड. और फिर एज एवरीबडी नो, आप सबको मालूम है कि 2019 दिसंबर से सबको प्रॉब्लम फेसिंग होना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. एंड फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया वैसे हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस आते गए. जैसे हमको बोला गया था कि एक टेबल छोड़ के दूसरे टेबल पे बिठाना है एज ए सोशल डिस्टेंसिंग कॉज. सो हम सब फॉलो किए वगैरह. अचानक में हमको पता चला कि ऑन 20th समथिंग 20th of March, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, कि हमको लॉकडाउन करना है फॉर 1 day. तो हम प्रिपेयर थे कि बिकॉज हमको ये नहीं पता था कि हमको और लंबा करना है उसको. तो हम लोगों ने वो एक शॉर्ट टाइम के लिए सोचा था, बिकॉज हम लोग एक लॉन्ग एज ए रेस्टोरेंट हम लोग लॉन्ग रूट का सब सेट करते हैं, हम लोग का स्टोर्स वगैरह जो आता है, तो हम लोगों ने वो प्रॉपर किया था. एंड अचानक में बंद करना पड़ा मेरे. गेस इट वॉज नवंबर का टाइम था जब हमको परमिशन मिला स्टार्ट करने के लिए. थोड़ा बिजनेस पिकअप किया, बहुत स्लो था, तो हमको मोमेंटम गेन करने के लिए वैसे भी बहुत टाइम लगता है. तो एक अच्छा बिजनेस सेट होने के लिए फिर हम लोग को फिर भी 2-3 महीने लगता ही है, जो सबको मालूम है आपको. हम लोग ट्राई किए, वर्क हार्ड किए, और नॉट ओनली मी बट बाकी का सब रेस्टोरेंट्स का भी यही हाल है. सब लोग ट्राई किए, सब लोग बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं. हर एक स्टाफ अपना 100% देता है वो टाइम के लिए. एंड लिटिल बिट हम लोग सेटल हो रहे थे कि फिर से पैंडेमिक शुरू हो गया जो एक हाइक पे पहुंच रहा है, एंड वापस हम लॉकडाउन के सिचुएशन में आ गए वापस से. तो बेसिकली हम लोग किसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं. हम एज अ गवर्नमेंट्स रूल हम सब फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू कीप एवरीबडी सेफ. हम हमारा फूड भी सेफली रखते हैं. सिर्फ हम भी यही चाहते हैं सबकी सेफ्टी के लिए, आप घर में रहो, सब सेफ रहे. तो मेरा आपसे सबके एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में रहे, हमारे सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो करें. सब अच्छे से हो जाएगा. तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग बहुत जल्दी ऑफिस स्टार्ट करेंगे, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Being a bartender, as a bar manager, like we are facing lot of problems. Not only
we, but all the people who are working into hospitality. So like following all the restrictions given by the government and all. So like what about us? Like we don't have a family, we don't have a loans, we don't have a houses to take care, we don't have our children and all. Like we are not getting so much, and as hotel industry, it was like when I joined the hotel industry, I thought it's a blessing, like serving people, interacting with them, it's good. Now I feel like it's a curse. क्या भाई तू होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है मतलब तू पाप कर रहा है, ऐसा हो चुका है. सो लाइक जस्ट गो थ्रू what lifestyle we are living today. हम लोग मेरा ओनर अली सर फ्रॉम मशद, उन्होंने एवरी टाइम एवरी सिंगल लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे उनका कॉल आ रहा था मेरे को कि डू यू नीड एनी हेल्प मे बी फाइनेंशियली और इमोशनली. ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी. सो आई वाज वेरी लकी इन फैक्ट बीइंग इन दैट प्लेस. बट लीविंग आफ्टर दैट दिस प्लेस ऑल्सो इज वेरी गुड एंड वी आर ट्राइंग लाइक वी आर स्टिल ट्राइंग टू क्लियर द बैकलॉग्स ओनली. बट अभी वापस से वही सीन आ गया कि लॉकडाउन हो गया अचानक. थोड़ा डिफ़िकल्ट है. पिछला साल तो ठीक है हम लोग सर्वाइव कर पा रहे, बट वो जो बैकलॉग लेके हम लोग जो आज स्टार्ट किए एंड वही वापस हम लोग को वापस बंद करना पड़ रहा है. तो एक बहुत फाइनेंशियल बहुत बड़ा इशू है फॉर एवरी वन, नॉट ओनली मी. हर एक आउटलेट फेस कर रहा है. भले हम लोग कितना भी अर्न कर ले, बट जो हमारा बेसिक है, जैसे कि हमारा आउटलेट का रेंट रहता है, हम लोग को आउटलेट का इलेक्ट्रिसिटी रहता है, जो मेंटेनेंस है, जो हमारा स्टाफ का सैलरी है, सबको लगता है कि ये सब होटल वाले एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. बट जो हम एक्चुअली जब हम कॉस्टिंग वगैरह सब निकालते हैं, हमको सब पता है कि कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है. जो 9 months का पेंडेमिक था, जैसे मेरे सीनियर ने बताया, हमने बहुत प्रॉब्लम फेस की है. जैसे कि फूड प्रॉब्लम, स्टाफ यहाँ पर फंसा हुआ था, हमें कुछ इनकम नहीं थी, पैसे नहीं, कुछ नहीं. तो लिटरली हम जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते थे, तो हम लोग खा के ये पेंडेमिक गुजारे हैं. पैसे नहीं थे, किनकी ईद है, कुछ फंक्शन है, किसी स्टाफ की शादी है, वो इधर फंसा पड़ा है, वो जा नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता प्रॉपर. बेसिकली उसको मतलब पैसे फाइनेंशियली बहुत ये हो गया था. इमोशनली तो हम सपोर्ट कर रहे थे, हमारे ओनर्स भी, लाइक प्रीवियस ओनर्स वगैरह हमें स्टार्टिंग में तो कुछ दे दिए, एटलीस्ट 25% वी आर गेटिंग. बट आफ्टर 1-2 months that also 25% of salary we are stopped. We are not having anything in our pockets. तो हम बेसिकली कहाँ कर रहे थे, छोटी मोटी नौकरियाँ कर रहे थे. कितने लोगों ने हम जैसे ने तो नौकरियाँ छोड़ दी, किसी ने तो सुसाइड कर लिया ड्यू टू ऑफ दिस पेंडेमिक. कुछ ऑप्शन नहीं था उनके पास. मतलब इतनी तरह हम बैड कंडीशन में थे कि हम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पर. पूरा लॉकडाउन था, कहाँ ट्रैवल भी नहीं कर सकते कि घर जाके हम उनको फूड डिलीवरी कर रहे. हमें कुछ ये भी नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो स्टार्टिंग के जो 1-2 मंथ थे तो सब मतलब बोल रहे थे, अरे तुम तो होटल वाले हो, तुम्हें क्या कि ये बहुत पैसे कमा लिए हो. पर उसके बाद हम जो सिचुएशन से गुजरे वो किसी को पता नहीं. मतलब ऐसा रोना आता था जब हम. तो इसी तरह से मतलब हमें भी कुछ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. बेसिकली जो हमारा स्टाफ है, हमें कुछ तो गाइडलाइंस दो कि जिसे हम फॉलो कर सके कि आज नहीं कल तुम ये चालू करो, वो चालू करो. बट ये लॉकडाउन में तो हम ऐसा हो रहा है, तो आगे क्या होगा वो पता नहीं. क्या जी भी सकेंगे नहीं, वो भी नहीं पता. वैसे भी सब लोग तो नॉर्मल ऑफिस वगैरह सब में वर्क फ्रॉम होम था. हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, सिर्फ घर वालों के लिए खाना बना सकते, इतना कर सकते हम लोग. सो गवर्नमेंट का गाइडेंस फॉलो करो, जो हम सब कर रहे हैं आप भी कर लो, और सब लोग सेफ रहो. होप सो वी विल मीट सून. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much for giving the interview, guys. And I hope कि चीज़ें ठीक हो जाए and the business should come back to the track and your life also. See, Thank you so mentally and much. emotion, everything should be, and financially also the main. Thank you so much Thank you, that thank you you so came much. over here and like there's someone like a hope, like not big but at least on a small scale, but there's a little bit of light you can see, so that people get aware of what is going on over here. Thank you so much. Yes, thank you guys. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम गोपी और ये मेरा वाइफ है रेणुका ब्राह्म. हम लोग दोनों मिलके एक छोटा सा फास्ट फूड का धंधा करते हैं.
इससे पहले लॉकडाउन, जब 2020 का लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम में भी हम लोग ने एक छोटा सा फास्ट फूड का धंधा चलाते थे। लेकिन वो फास्ट फूड का धंधा चलाते चलाते ऐसा हो गया कि लॉकडाउन इतनी बढ़ गई कि हम लोग को धंधा बंद करना पड़ा। धंधा बंद करने के बाद 6 महीना तक तो हम लोग ने किसी भी तरह उसका रेंट भरे कि आज खुलेगा, कल खुलेगा, आज होएगा, कल होएगा। लेकिन हालात ऐसी इतनी बिगड़ गई कि वो लॉकडाउन खुला नहीं, लॉकडाउन बढ़ते रह गया। तो जिसकी वजह से हमारा होटल का A to Z सामान, जितने भी सामान थे वो तक बेच के होटल खाली करना पड़ा। उसके बाद जैसे तैसे हमारी ज़िंदगी बस चल ही रही थी, खाने के लिए जी रहे थे, जी चल रहा था। लेकिन अभी वापस हम लोग ने, मेरा वाइफ का मंगलसूत्र और एक कान का छोटा सा झुमका था, वो बेच के हम लोग ने सोचा कि फिर से कुछ चालू करें ताकि आगे हम लोग कुछ कर पाएँ। वो हिसाब से हम लोग ने छोटा सा एक गाला लिया जिसमें चाइनीज़ और सुबह का राइस प्लेट हम लोग बेचने के लिए लिए थे। लेकिन जिस दिन से राइस प्लेट और चाइनीज़ बेचने के लिए लिए, सिर्फ हम लोग थोड़ा बहुत राइस बना रहे हैं और चाइनीज़ शाम को थोड़ा सा बना के रखते हैं, लेकिन बिकता नहीं है। सुबह हम लोग ही खाते हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह, यही हो रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही विनती है कि हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सा केयर करें, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पूरे लॉकडाउन होने के कारण हमारे जैसे आदमी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मेरे घर में देखिए, मेरा 5 जन फैमिली है, मेरा वाइफ है, मेरा 3 बच्चे हैं, जिसमें 10वीं में, बड़ी लड़की 10 में है, सेकेंड वाली 5 में है और थर्ड वाली 3 में है। तो जिनका आज ही मेरे को मैसेज आया कि उनका फीस का पेमेंट भरना है, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रही है, उनका 15,000 रुपये भरना है। 1 तारीख होते ही मेरा रूम का रेंट आ जाती है, तो वो रेंट भरना है, लाइट की बिल भरना है, पानी की बिल भरना है। लेकिन जब कमाई ही नहीं है तो ये सब पैसा लाऊं कहाँ से? तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे जैसे मिडिल क्लास जो फास्ट फूड सेंटर चलाते हैं, छोटा ठेले में जो सब्जियां बेचते हैं या छोटा मोटा कारोबारी जो भी करते हैं, उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे और कुछ देर के लिए ही सही कि बोलना चाहिए कि कैसे चलेगा। और हम लोग स्विगी और जोमेटो में रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग छोटे मोटे धंधे हैं, हम लोग टैक्स पे नहीं करते क्योंकि इतनी कमाई नहीं है जिससे हम टैक्स पे करें। और जब प्रॉपर टैक्स पे नहीं करेंगे, GST नहीं है और फूड लाइसेंस नहीं है, तो आपका जोमेटो या स्विगी में होने का चांसेस ही नहीं है। और जब जोमेटो और स्विगी में नहीं है तो हमारा ऑनलाइन धंधा नहीं होगा। ऑनलाइन धंधा नहीं है तो काउंटर धंधा में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पुलिस बोलती है कि निकलना 11 नहीं बजे है, के बाद बंद होना चाहिए, धंधा नहीं करना है, चालू नहीं करना है। गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि सोशल डिस्टेंस रखो और जितना ज़रूरी होगा तभी घर से बाहर निकलो, नहीं तो मत निकलो। तो गवर्नमेंट की ये बात सब कुछ सही है, ये सब कानून रूल फॉलो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारा काउंटर का धंधा है ही नहीं, कोई पब्लिक आएगी नहीं तो हमारा काउंटर धंधा है ही नहीं। जब काउंटर का धंधा है ही नहीं तो हम लोग का घर चलेगा ही नहीं। और जिसके कारण हम लोग का ऐसी हालत हो गया है, रूम का रेंट नहीं भर पा रहे हैं, लाइट का बिल नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों का ट्यूशन फीस नहीं भर पा रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या हमारे लिए कुछ ऐसा करे जिससे हमारे को 100 रुपये में से 50% कुछ हो जो हमारा सहूलियत बने, जिससे हम आगे कुछ कर सकें। नहीं तो हम लोग का जिंदगी ऐसे हो गया कि सब लोग बोलते हैं कि बोरी बिस्तर लेके गांव भागो, बस यही हालत होने वाला है। अभी गांव भागने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। गांव भागेगा तो गांव में भी 15 दिन 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना है। जिसका घर होगा, अलग से सेपरेट रूम होगा तो वो क्वारंटाइन में रह सकता है। गांव जाने के लिए भी आपको यहाँ से कोरोना का सर्टिफिकेट चाहिए। कोरोना सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी अभी गवर्नमेंट ने 600 कर दिया, पहले तो 1500 था, अब ये 600 रुपया भी नहीं है। तो आदमी अभी क्या कर सकता है? गांव जाने का परिस्थिति है ही नहीं। एक आदमी हो तो गांव जा सकता है, 5-5, 6-6 जन गांव जाके रह नहीं सकते। बॉम्बे में रहने की हालत नहीं है। तो गवर्नमेंट हमारे जैसे मिडिल फैमिली को कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमको जीने की आशा मिले। तो मैं तो चाहता हूँ कि कुछ हेल्प कोरोना से हेल्प तो गवर्नमेंट को हमारे जैसे मिडिल फैमिली को करने चाहिए। लेकिन जो कोरोना से मरेगा पब्लिक वो तो बात अलग है। लेकिन कोरोना से पहले हमारे पास रुपया नहीं है, खाने पीने का कुछ सहारा नहीं है, तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। क्योंकि कोरोना से तो बाद में मरेगा, लेकिन पब्लिक भूखमरी से पहले मर जाएगा। क्योंकि कमाई नहीं है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं होगा और घर में खर्चा नहीं चलेगा, तो आदमी करेगा क्या? उसके लिए कमाई के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। और बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले बोलते हैं बाहर क्यों निकल रहे हो। और उनका बात भी सही है, गवर्नमेंट बोलती है जरूरी काम होगा तो निकलो, नहीं तो मत निकलो। वो बात हमारे जैसे आदमी को सभी को मालूम है। कोरोना से हमको भी डर है,
हमारी भी जान है, लेकिन हमारे से पहले हम उनके बारे में सोचते हैं जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो भूखा रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बच्चे का पेट भूखा सुला नहीं सकते, बच्चे को देख के हम लोग ऐसे ही रह नहीं सकते। तो मजबूरी है कि कोरोना को साइड में रख के हमको कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। होटल तो नहीं चल रही है, दुकान कुछ नहीं हो रही है, काम कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप बताइए कि आप लोग क्या कर सकते हैं। और मैं तो आप लोग से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग का हर चीज़ हम लोग मानते हैं, हर कानून हर चीज़ फॉलो करते हैं, लेकिन आपसे हमारा एक ही विनती है कि आप हम सभी मिडिल क्लास फैमिली को, छोटे कारोबारी को, ठेले वाले हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, भाजीपाला फल फ्रूट वाला या हमारे छोटे मोटे फास्ट फूड वाला सेंटर जो भी है, उन सभी को कुछ राहत के लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें कोरोना से भी लोग सेफ हो और ये भूखमरी से और कमाई से भी सेफ हो, ताकि किसी को किसी तरह परेशानी ना हो। जिस तरह से आज तक हम लोग जीते आए हैं, आगे भी जिएंगे, आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट हमारे जैसे को थोड़ा ध्यान दे, बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैन ऑफ फूड की चैनल की तरफ से मैं ये 2 बातें सरकार को बोल रहा हूँ। अगर ये चैनल के थ्रू अगर सरकार मेरी बात सुन रही है, हमारे जैसे लोगों को हेल्प करे। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे और गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, जरूर सोचे, क्योंकि हम जैसे लोग करेंगे क्या, ये बहुत बड़ी समस्या। थैंक यू मैम। दोनों आपने देखा ही होगा कैसे इस लॉकडाउन के वजह से और पेंडेमिक कैसे कितना उनके बिजनेस को इफ़ेक्ट हुआ है। तो मैं इस वीडियो को मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे और फेसबुक के पेज पे भी डालने वाला हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो और वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए। एक इंस्टाग्राम पे एक आर्टिस्ट है, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ, उनका पेज इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देना चाहता हूँ। शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। जिस तरह से वो पेंट करते हैं मग्स को हो गया या टी शर्ट्स को, जैसे उन्होंने मुझे ये टी शर्ट दिया है मैन ऑफ फूड का, उन्होंने इतना प्यारा प्रिंट किया है, जो क्वालिटी ऑफ टी शर्ट है इतना अच्छा है। उनका नाम है colorstore.in करके इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। प्लीज़ जाइए, उस पर भी क्लिक कीजिए, जाके चेक कीजिए कितना अच्छा उन छोटे छोटे आर्टिस्टों को भी सपोर्ट कीजिए आप। अगर आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगता है कि ये स्टोरी मुझे बताना चाहिए था लोगों को, हर एक व्यक्ति को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, फिर से हर एक चीज़ अपने ट्रैक पे आ जाए, सबकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए फिर से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैन ऑफ फूड।